مجھے اندازہ تھا کہ ویرا سفید فام ہونے کی وجہ سے مجھ سے زیادہ مشکل سے دو چار ہوگی۔ اول خان کا بھی محتاط رہنا ضروری تھا۔ چند منٹ بعد ہم سب سنی ہٹ سے کافی دور سمندر کے اتلے پانی میں کھڑے ہوئے تھے۔ چاروں بلا نوش لگتے ہیں۔ ویرا تشویش امیز آواز میں بڑبڑائی، ان کے مدہوش ہونے کا انتظار کرتے رہے تو ہمیں سویرا ہو جائے گا، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میں نے کہا، یہاں تک آ گئے ہیں تو انتظار کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہمارے اطمینان کے لیے کافی ہے کہ ٹام ہمارے سامنے ہے۔ کچھ دیر تک تیل اور تیل کی دھار دیکھتے ہیں، پھر فیصلہ کریں گے کہ انتظار کرنا بہتر رہے گا یا اللہ کا نام لے کر دھاوا بول دینا چاہیے۔ انتظار بھی کر لیا جائے گا، سلطان شاہ بولا۔ اس دوران میں یہ فیصلہ کر دو کہ کون کدھر کا رخ سنبھالے گا۔ تینوں کمانڈوز الگ الگ سمتوں میں جمے ہوئے، انہیں ایک پوزیشن سے نشانے پر نہیں لیا جا سکے گا۔ مجھے چاندنی کی فکر ہونے لگی۔ وہ باضابطہ طور پر مسلح کمانڈوز کو اپنے ساتھ لے کر سمندری پکنک پر آئے تھے اور بے فکری سے اپنے ہتھیاروں کی نمائش کر رہے تھے۔ ان کی بے خبری میں حملہ آور ہونے کے لیے آڑ بہت ضروری تھی، لیکن چاند کی پھیکی روشنی نے دور دور تک سب کچھ اتنا واضح کر دیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے رتیلے ٹیلے ہمیں کوئی تحفظ فراہم نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو مطلب بالکل صاف تھا۔ چاند پر بدلی آنے کے دور دور تک کوئی آثار نہیں تھے۔ گھر بیٹھ کر نہایت آسان نظر آنے والا وہ مشن میدان میں اترتے دشواریوں کا شکار ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ان تینوں محافظوں کو بیک وقت پہلے فائر میں ہلاک یا زخمی کرنا بہت ضروری تھا۔ انہیں ذرا بھی مہلت ملتی تو اپنے جوابی فائر سے سامنے والے کو پھون ڈالتے۔ ہماری کسی غلطی سے فائدہ اٹھا کر وہ کمانڈوز ہٹ میں گھسنے میں کامیاب ہو جاتے تو ہم کسی قیمت پر اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ پولیس یا اپنے قونصل خانے سے کوئی کمک آنے تک وہ ہمیں آسانی سے باہر روک سکتے تھے۔ سنی ہٹ کی چھت پر پہنچا ہوا ایک کمانڈو باہر پھیلے ہوئے 20 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا، جبکہ ہماری نفری کل 6 تھی، جن میں 2 عورتیں شامل تھیں۔ میرا ذہن بری طرح الجھ گیا۔ وہاں تک آ جانے کے بعد دشمن سے 2 ہاتھ کیے بغیر واپس لوٹ جانا ناممکن تھا۔ تصادم میں پوشیدہ خطرات و امکانات دماغ کو معاف کیے دے رہے تھے۔ میرے دل و دماغ میں ایک ہیجان سا برپا ہو چکا تھا۔ مجھے خوف آنے لگا کہ کہیں ٹام بھی سوبراج کی طرح ہمیں اپنی جھلک دکھا کر صاف نکلنا چاہے۔ اندیشوں کے اس ہجوم میں کامیابی کی صرف ایک راحت نظر آ رہی تھی کہ بے مقصد گولیاں چلا کر انہیں ہوشیار کرنے کے بجائے سنی ہٹ پر ایک ساتھ کئی دستی بموں سے حملہ کر دیا جائے۔ یقینی طور پر وہ ایک اندھا دھند اور خودکش حملہ ہوتا جو جس کی زد میں آتا مارا جاتا۔ اس افراتفری سے فائدہ اٹھا کر تیزی سے ٹام تک پہنچنا ممکن تھا۔ وہ کامیابی کی ایک راہ ضرور ثابت ہو سکتی تھی، لیکن ہمیں اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑتی۔ ہماری ٹیم میں سب ایک دوسرے کے چہیتے اور پیارے تھے۔ کوئی ایسا نہیں تھا جسے اس نازک وقت پر قربانی کا بکرا بنایا جا سکے۔ ٹام کے لیے وہ قیمت بہت زیادہ تھی، میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا بات ہے، تم بہت پریشان نظر آ رہے ہو؟ اول خان نے مجھے ایک طرف لے جا کر پوچھا۔ اسے سب کچھ بتانا ممکن نہیں تھا، میں نے اختصار سے کام لیتے ہوئے کہا۔ آمنے سامنے کے مقابلے کے لیے ان کی دفاعی پوزیشن بہت مضبوط ہے۔ میں سنی ہٹ پر دستی بموں سے اچانک حملہ کرنے کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں۔ اول خان ریٹائرڈ فوجی تھا، اس نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سے تماشے دیکھے ہوئے تھے۔ اس نے 2 ٹوک الفاظ میں انکار کر دیا۔ میں اس کا مشورہ نہیں دوں گا۔ ہم میں سے ایک بھی مارا گیا تو تم ساری زندگی خود کو کوستے رہو گے۔ اس سے بہتر ہوگا کہ ہم جس طرح آئے ہیں خاموشی سے واپس لوٹ جائیں۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اس کے ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ ہم یہاں بمباری کرنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے۔ میری جیپ میں 2-4 ہلکے دستی بم ضرور ہوں گے، لیکن وہ سنی ہٹ کی مضبوط عمارت کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔ میں پہلے ہی نکال چکا ہوں۔ اپنی تسلی کے لیے تمہاری رائے لے رہا تھا۔ اوہ، اندھیرا ہو گیا؟ یک ویرا کی بے ساختہ آواز ابھری۔ میں نے چونک کر سر گھمایا تو سنی ہٹ کا روشن برآمدہ تاریک ہو چکا تھا۔ وہ چاند کی براہ راست کرنوں سے محروم تھا، لیکن ادھر ادھر سے آنے والے انعکاس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ برآمدے کی 2 کرسیاں خالی ہو چکی تھیں۔ ایک دوسرے میں مدغم ہونے کے بعد بے چین اور بھاری ہیولوں کی کل تعداد 2 رہ گئی تھی۔ ان کے میدوں میں اتری ہوئی شراب ان کے دماغوں میں چڑھ رہی تھی۔ بنت امب نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا تھا۔ افت و آبرو کے مفہوم سے ناشنا کھوپڑیوں پر شیطان نے اپنی سواری گانٹنی شروع کر دی تھی۔ ساحل پر دم توڑنے والی موجوں کے ہلکے ہلکے ماورائی شور میں وہ چاروں تاریک برآمدے میں بیٹھے رہے۔ میری نگاہیں ان کی طرف لگی ہوئی تھیں، مگر میرا ذہن کہیں اور تھا۔ میں نے سنجیدگی سے اول خان کی دی ہوئی واپسی کی تجویز پر غور کرنا شروع کر دیا۔ اچانک رات کے سناٹے میں کہیں سے فائر کی ایک کرجدار آواز گونجی اور میں بے اختیار اپنے سینے کے بل
नरम और गीली रेत पर गिरता चला गया। आवाज करीब की थी, मुझे अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए थे। साहिल पर दम तोड़ने वाली मौजों के धीमे धीमे मगर पुरहोल शोर में फायर की आवाज किसी भयानक आसेबी चीख से कम नहीं थी। टॉम और उसके साथी साहिली वीराने में बेफिक्री से जश्न मनाने के इरादे से आए हुए थे। इनकी तरफ से वो फायर कतई गैर मुतवक्का था। मैंने सीने के बल नरम रेत पर गिरते ही अपने गिरदो पेश में निगाहें दौड़ाईं और ये देखकर मुझे इत्मीनान हुआ कि मेरे तमाम साथी मेरे आस पास कमोबेश इसी दिफाई पोजीशन में लेटे हुए थे। इनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। फायर की गरेदार आवाज से साफ अंदाजा हो गया था कि वो किसी ताकतवर राइफल से किया गया था। फिजा में इस फायर की गूंज मादूम होने से पहले अचानक गजाला की दबी दबी हैजानी आवाज उभरी। वो क्या? अभी अभी हवा में कोई चौपाया सा उछला है। इस वक्त मैं इन लोगों का जायजा लेने में मसरूफ था। गजाला की आवाज सुनते ही मेरी नजरें गैर इरादी तौर पर उस समत में उठ गईं जिधर गजाला देख रही थी। मैंने भी सनी हट के पीछे वो साया उछलते देखा है। अव्वल खान ने धीमी आवाज में गजाला की तायद की। कोई कुत्ता या भेड़िया मालूम हो रहा था। मैंने इन दोनों की आरा पर कोई तबसरा नहीं किया। मेरी निगाहें सनी हट की तरफ जमी रहीं। वो शहर से बहुत दूर वीरान साहिली इलाका जरूर था, लेकिन वहां भेड़ियों और गीदड़ों वगैरह का कोई वजूद नहीं था। अगर गजाला और अव्वल खान ने मुख्तसर वजूद वाले किसी चौपाए को फिजा में उछल कर गिरते हुए देखा था तो वो कोई आवारा कुत्ता ही हो सकता था। खुले वीराने में फायर की आवाज बहुत दूर तक फैली थी। वक्ती तौर पर शायद लोग चौंके हों, मगर इनकी तफरीही सरगर्मियां दोबारा बहाल हो चुकी थी। वो एक तफरीही इलाका था। लोगों को मालूम था कि शहर के औबा शुमारा अपनी अयाशियों के लिए अक्सर अपने इन साहिली ठिकानों में रातें बसर करने के लिए आते हैं, जहाँ कानून केवल दारे बराए नाम है। जब तक कहीं कोई दंगा फसाद न हो, कानून के रखवाले लोगों की खलवतों में दखल अंदाज होकर रंग में भंग नहीं डालते। कभी कभार नशे में बहका हुआ कोई शख्स अपनी वालियाना खुशी के इजहार में इक्का दुक्का हवाई फायर भी कर डालता है, जिसे लोग जश्न तर्ब का एक हिस्सा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारी टोली की कैफियत वहां आए हुए दूसरे सैलानियों से बहुत मुख्तलिफ थी। हम अपने एक अहम और खतरनाक दुश्मन की सरकोबी के मिशन पर आए हुए थे। दुश्मन मुसल्ला और चौकन्ना था। इसके इशरत कदे की तरफ से चलाई जाने वाली गोली को हम में से कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। इस वक्त एक एक लम्हा भारी गुजर रहा था। मैं कई सानियों तक रेत पर उसी तरह पड़ा रहा, किसी और फायर या जवाबी आवाज का इंतजार करता रहा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं हुआ। पहले की तरह हर तरफ सकूत का राज हो चुका था। समंदरी पानी में तफरीह करने वालों की मुसरत अमेज आवाजें साहिल पर दम तोड़ती हुई मौजों की मुहिब आवाजों में दब कर रह गई थी। इस फायर के नतीजे में सनी हट का साहिली बरामदा वैरान हो चुका था। वहां की रोशनियां गुल होने के बाद 2 कुर्सियां पहले ही खाली हो चुकी थीं। बकिया 2 कुर्सियों पर बहम शीरो शकर होने वाले चारों वजूद फायर होते ही अंदर भाग गए थे। इस वक्त चारों खाली कुर्सियां हमारा मुंह चिढ़ा रही थी। इब्तदाई झटके से संभाला लेने में कई सानिये गुजर गए। अंधेरा होने के बावजूद हम में से किसी ने फायर की चमक नहीं देखी थी, लेकिन आवाज की समझ से यह तयन हो गया था कि गोली सनी हट की तरफ से चलाई गई थी। नजर आने वाले चारों अफराद का रद्द-ए-अमल हमसे मुख्तलिफ नहीं था। गोली चलते ही वो इज़्तिरारी तौर पर अंदर भाग गए थे। इससे लाजमी तौर पर यह नतीजा सामने आ रहा था कि वो गोली सनी हट के गिर्द मामूर किसी कमांडो ने चलाई थी। इस मफरूजे को गजाला और अव्वल खान के मुशाहिदे से जोड़ने के बाद मेरे जहन में एक इम्कान उभर रहा था कि खुराक की बू पाकर सनी हट का रुख करने वाला कोई आवारा कुत्ता किसी मुहाफिज की गोली का निशाना बना था। गोली की जद में आकर मरने वाले कुत्ते की चीख ना उभरने का एक ही सबब हो सकता था कि ताकतवर राइफल के फायर ने चश्मे ज़दन में कुत्ते की मुख्तसर सी खोपड़ी उड़ा दी हो। वो ख्याल जहन में रासिक होते ही मैं जमीन छोड़कर अपने कदमों पर खड़ा हो गया। क्या कर रहे हो? वीरा मेरी पतलून का गिला पांचा खींच कर मुजरबाना आवाज में बोली। कुछ देर तक नीचे पड़े रहो, पता नहीं कब दूसरी गोली चल जाए। अब कोई गोली नहीं चलेगी, मैंने नीची आवाज में पूरे एतमाद से जवाब दिया। सनी हट की तरफ बढ़ने वाला कोई भूखा और आवारा कुत्ता मारा गया है। अभी इंसानों का निशाना लेने की बारी नहीं आई है। मैं बढ़कर देखता हूँ कि वहां क्या हुआ है। मेरे तजरिए से मेरे साथियों को हौसला मिला और वो एक एक करके अपने कदमों पर खड़े होते चले गए। हो सकता है कि तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त हो, लेकिन वो सब होशियार हैं। इस वक्त तुम्हारा इनकी तरफ जाना खतरनाक साबित हो सकता है। अव्वल खान ने पुरतशवीश लहजा में कहा। कुत्ता मारा गया है तो उसे देखकर तुम क्या तीर मार लोगे? वीरा ने अपने मखसूस अंदाज में मुझे पेशकदमी से रोकने की कोशिश की। मैंने इन दोनों को फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। इस वाक़े के नतीजे में मुझे अपनी मुश्किल आसान होती नजर आ रही थी। चंद मिनट पहले मैं बेनीलो मराम वापसी के इम्कानात पर गौर करने पर मजबूर हो गया था, मगर इन वक्त पर कुदरत ने मुझे सनी हट तक जाने का एक सुनहरा मौका फराम कर दिया था। मेरे जहन में यकायक रोशन इम्कानात की यलगार होने लगी थी।
इन लोगों को चंद फिक्रों में वो सब समझाना मुमकिन नहीं था। मेरे लिए कुछ कर गुजरने के बस वही चंद लम्हे थे। वक्त गुजर जाता तो मेरी हिकमत अमली बुरी तरह नाकाम हो सकती थी। कुछ नहीं होगा, मैंने कदर तवक्कुफ के बाद उन्हें यकीन दिलाया। हो सकता है कि मुझे उनसे मिल बैठने का कोई मौका मिल जाए। खतरा देखते ही मैं लौट आऊंगा। मैंने किसी के जवाब का इंतजार नहीं किया। अपनी बात पूरी करते ही छोटे छोटे कदमों से सनी हट की तरफ हो लिया। यह ख्याल मेरे जहन में शुरू से ही जागुज़री था कि इस इलाके में टाम और उसके साथियों की मौजूदगी की इत्तला हमें जलाल के आदमियों से मिली थी, जो अल्फा वाले किस्से की इब्तदा से साया बनकर टाम की निगरानी कर रहे थे। इन लोगों से हमें किसी किस्म की कोई मदद नहीं मिल सकती थी, मगर यह बात यकीनी थी कि वह अपने पेशा वाराना तजस्सुस से मजबूर होकर इस खेल का इख्तिताम जरूर देखना चाहते जिसकी दाग बेल उन्होंने डाली थी। आईबी वाले हमारी नजरों से ओझल थे, मगर मैं पूरे वसूख से कह सकता था कि वो इस वक्त भी किसी न किसी बहरूप में किसी ऐसे मकाम पर मंडला रहे होंगे जहां से सनी हट पर निगाह रखी जा सके। मैं चंद कदम आगे बढ़ा तो मैंने ये देख लिया कि सनी हट की वो समत खाली पड़ी हुई थी। इस तरह मामूर कमांडो शायद फायर के बारे में मालूमात हासिल करने की गर्ज से किसी और तरफ निकल गया था। मैंने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। सनी हट के बाहर की तरफ खुलने वाली तमाम खिड़कियां बंद थीं और शायद इन पर पर्दे भी खिंचे हुए थे, लेकिन दर्जों से झलकने वाली रोशनी अंदर की जिंदगी की खबर दे रही थी। 4 सफेद फाम अफराद या 2 जोड़े बाहर से भागकर अंदर पनाह ले चुके थे। गुजरे हुए लम्हों में इन्हें अपने किसी मुहाफिज से यह भी मालूम हो गया होगा कि फायर करने की जरूरत क्यों पेश आई थी। वो बाहर की दुनिया से अपना हर राब्ता खत्म करके अंदर मगन थे। मैं उजलत में आगे बढ़ता रहा। फिर मुझे वो दोनों कमांडोज नजर आ गए जो सनी हट की पिछली समत में खड़े बातें कर रहे थे। इनके तीसरे साथी ने इनके साथ आ मिलने की जरूरत नहीं समझी थी। मैं बहुत तेजी से गिरदोपेश का नक्शा अपने जहन में महफूज करता हुआ आगे बढ़ता रहा। अचानक एक कमांडो ने मुझे देख लिया। वहां मेरे छुपने का कोई इम्कान नहीं था। मैं इनमें से किसी से मुलाकात का इरादा करके अपने साथियों से अलग हुआ था। हाल्ट, कौन इधर आ रहा है? उसने इस्तरारी आवाज में मुझे ललकारते हुए अचानक अपने गन से निशाना ले लिया। मैं दोस्त हूं, मैंने खतरे के पेश नजर अपनी पेशकदमी तर्क करके नरमी से जवाब दिया। अभी अभी इधर से गोली चलने की आवाज आई थी, क्या तुमने सुनी थी? अकलौते फायर की आवाज न सुनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, मगर मेरा आखिरी सवाल इस तरह से था। तो उसने बिला तवक्कुफ कहा, हाँ, हमने एक आवारा कुत्ता मारा है। इधर आने की जरूरत नहीं, वापस जाकर मौज करो। ओह, मैंने बेसाख्ता कहा, क्या मैं एक नजर मरे हुए कुत्ते को देख सकता हूँ? मेरा पालतू कुत्ता कहीं भटक गया है और 1.5-2 घंटे से गायब है। कुत्ता मर चुका है, उसने अपनी राइफल शाने से लटका कर जवाब दिया। अगर यह तुम्हारा पालतू था तब भी तुम इसे देखकर जिंदा नहीं कर सकोगे। हम लोगों के जाने के बाद अच्छी तरह उसे देख लेना, इस वक्त यहाँ से दूर रहो। जवाब देते हुए उसने मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इसका अंदाज किसी भी एतबार से जारहाना नहीं था। मैंने अंदाजा लगाया कि उसने अपनी जगह पर वापस पहुंचने के इरादे से अचानक मेरी तरफ चलना शुरू कर दिया था। शायद उसे एहसास हो गया था कि उसके अपनी जगह पर मौजूद न होने के बायस मुझे आगे बढ़ने का मौका मिल गया था। वो अपनी जगह पर रहता तो मुझे पहले ही रोक सकता था। तुम्हारा मशवरा सर आंखों पर, मैंने लिजाजत से कहा, लेकिन हम ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुकेंगे। हमारे साथ गड़बड़ हो गई है, हम थोड़ी देर में शहर वापस चले जाएंगे। वो मेरे करीब पहुंचकर रुक गया और अपनी आंखें मेरे चेहरे पर गाड़ कर बोला, कैसी गड़बड़ हुई है? तुम बिला वजह बहस क्यों कर रहे हो? उसका लहजा इस्तिबा अमेज था। मैं बिला वजह बहस नहीं कर रहा। मेरी शक्ल सूरत से तुमको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि मैं एक मुअज़्ज़ज़ और शरीफ आदमी हूँ। इस बार मैंने उसे कायल करने के लिए हल्की सी खफगी का इजहार शुरू समझा। हमने पिकनिक मनाने के लिए जो हट किराए पर लिया था, इसका चौकीदार चाबी समेत गायब है। पता नहीं इस पर क्या मुसीबत आई है। हम इस मौसम में खुले आसमान के नीचे पूरी रात नहीं गुजार सकते। हमें अभी वापस जाना पड़ेगा। अगर तुम मुझे कुत्ते को देखने से क्यों रोक रहे हो? सूरज से तुम वाकई शरीफ लगते हो। उसने मेरे सरापा का जायजा लेते हुए काटदार लहजा में कहा, खाली हाथ भी हो, ये तुम्हारी बदनसीबी है कि तुम्हारा पालतू कुत्ता गायब हो गया और हट का चौकीदार भी नहीं आया। हो सकता है कि वो बीमार हो गया हो। कभी कभी ऐसे इत्तफाकात होते रहते हैं। जाओ और इस पाकिस्तानी कुत्ते को एक नजर देखकर फौरन लौटाओ। वो हद से तजावुज कर गया था। इससे इजाजत मिल जाने पर मैंने अपने इश्तियाल पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा खून खौल उठा। मैं इसकी जहर फशानी बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने बहुत से अमरीकी कुत्ते भी देखे हैं, वो अंग्रेजी नहीं बोलते, पाकिस्तानी कुत्तों की तरह भौंकते हैं। क्या तुम्हें इनमें कोई फर्क नजर नहीं आता है? मैंने कड़वे लहजे में पूछा। तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया कि मैं अमरीकी हूं? उसने कदरे हैरत से सवाल किया। मैंने तुम्हारा नहीं, अमरीकी कुत्तों का जिक्र किया था। मुझे अपने दिल की भड़ास निकालने का मौका मिल रहा था। मैं समझ रहा हूं तुम्हें फ्रेंच, जर्मन या इंग्लिश कुत्ते क्यों याद नहीं आए। मेरा मुखातिब कोई जर्मन होता तो मैं जर्मन कुत्ते की बात करता। मैं यही तो पूछ रहा हूं कि तुमने मुझे अमरीकी कैसे समझ लिया? इसका सवाल बहुत टेढ़ा था। मैं मुश्तिल होकर उसे मुंह तोड़ जवाब देने में कामयाब जरूर हो गया,
लेकिन उसकी कौमियत का हवाला मेरे लिए गले की हड्डी बन गया था। वो इन ठीठ और बेशर्म लोगों में से नजर आ रहा था जो दूसरों को गाली देने में आर समझते हैं, न गालियां कहा के बेमजा होते हैं। उसने यकायक वो नुक्ता पकड़ लिया था जो मुझे लाजवाब कर सकता था। इसे बराबरी से जवाब देने के बाद मेरा गुस्सा दब चुका था। बदतरीन ज़हनी दबाव के आलम में मुझे मौजूद जवाब सूझ ही गया। मैंने बहुत नरमी से कहा, इस तरफ आने वालों को मालूम है कि सनी हट अमरीकियों की मलकियत है। यहाँ वो खुद आते हैं या उनके मेहमान। ये बात समझने के लिए किसी गैर मामूली जहानत की जरूरत नहीं थी। वो पुरगुरूर अंदाज में धीरे से हंस पड़ा। यह जानकर उसकी अना की तस्कीन हुई थी कि किसी वाज़ेह हवाले के बगैर भी उसकी कौमियत का तयन कर लिया गया था। जाओ और उसे देख कर उल्टे कदम लौटाओ। हमारी मौजूदगी में ये ममनू इलाका बन जाता है। मेरे ललकारने पर तुम ना रुके होते तो मैं एक गोली तुम्हारे नाम भी कर देता। आज रात यहाँ परिंदे को भी पर मारने की इजाजत नहीं है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। उसे किसी गैर जरूरी बात में उलझने के बजाय मैं ममनूनियत का इजहार करता हुआ आगे बढ़ गया। इस वक्त मैं कामिल बेयकीनी की कैफियत से गुजर रहा था। कुछ पता नहीं था कि अगले लम्हे में क्या हो जाएगा। मुझे अपना दिल हल्के में धड़कता हुआ महसूस हो रहा था और दौराने खून कनपट्टियों में ठोकरें से मार रहा था। इनमें से किसी ने एक आवारा कुत्ते पर तबाह आजमाई करके अचानक एक नई राह खोली थी। मैंने इस मौका से फायदा उठाते हुए शेर की कछार में कदम रख दिया था जहां से वापसी की कोई राह नहीं थी। मैं लौटता तो वो मुझे बेदुरेग गोलियों की बाढ़ पर लेकर भून डालते। वाहिद रास्ता ये था कि मैं मर्दाना वार इनसे मुकाबला करके इन्हें ज़ेर करने की कोशिश करता। कामयाबी की सूरत में मुझे जिंदा रहने और लौटने का हक मिल सकता था। मुझे पेशकदमी की इजाज़त देने वाला कमांडो पीछे रह गया था। सनी हट के अकबी हिस्से की हिफाजत करने वाला पूरी मुस्तैदी के साथ मेरे इस्तकबाल के लिए तैयार था। सनी हट के दूसरे पहलू पर मामूर तीसरा कमांडो इस वक्त तक मेरी निगाहों से ओझल था। मरने वाला कुत्ता तुम्हारा है? मेरे करीब पहुंचने पर उसने तफ्तीशी रुखाई के साथ सवाल किया। मैं इसे देखे बगैर कुछ नहीं कह सकता, मैंने मोहतात लहजे में कहा। वो कोई आवाज निकाले बगैर मरा है। चीखा होता तो शायद मैं इसे इसकी आवाज से पहचान लेता। इनके दरमियान पहुंचने तक मैंने कुछ तय नहीं किया था कि मैं किस हीले से इनका कुर्ब हासिल कर सकूंगा। बात से बात निकली और मैंने मरने वाले कुत्ते की मलकियत का इम्कानी दावा कर दिया। वो बहुत मामूली सा वाक़या था जो अचानक अहमियत इख्तियार कर गया था। मैं अपने दूसरे हरीफ से मुकालमा करते हुए अपने दिल ही दिल में दुआएं मांग रहा था कि कुत्ते की मलकियत का दावा मेरे गले न पड़ पाए। पालतू कुत्ते अपने मालिक की बू पहचानते हैं। यूं वीरानों में मारे मारे नहीं फिरते। वो आसानी से मुझे राह देने पर आमादा नहीं था। मैं तुम्हारे साथी को अपनी कथा सुना चुका हूँ, मैंने बेजारी का मुजाहरा करते हुए कहा। अब तुमको भी बताए देता हूँ कि हमने हट किराए पर लिया था। हम यहाँ आ गए, चौकीदार नहीं पहुंचा, हट पर ताला पड़ा हुआ है। हमारा कुत्ता बौखला कर गायब हो गया। हम उसकी तलाश में यहाँ रुके हुए हैं। वो तुम्हारे हाथों मर चुका है तो हम अभी लौट जाएंगे। ओह, इसका मतलब है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ और कितने आदमी हैं? उसका भी इसको एक नई बात सोच गई। वो 2 या 200 भी हो सकते हैं, मैंने चिढ़कर जवाब दिया। तुम इनसे क्या लेना है? तुम्हारे पास मैं अकेला आया हूं। तुम लोग एक मामूली सी बात को इतना तूल क्यों दे रहे हो? कुत्ते की लाश दिखाने में तुम इतनी हीरो हुज्जत क्यों कर रहे हो? बात कुत्ते की नहीं, सनी हट की है। उसने मेरे लहजे का बुरा मनाए बगैर तशवीश सदा लहजे में कहा। तुमने मुश्तबा अंदाज में हमारे हट तक पहुंचने की कोशिश की है। अपना इत्मीनान करना मेरा पूरा हक है। क्या यह बात अजीब नहीं है कि मैंने कुत्ते को मारा और तुम उसके मालिक होने का दावा करके सामने आ गए? साहिलों पर कौन पालतू कुत्ते लेकर आता है? तुम गैर जरूरी बातें कर रहे हो। लोग कुत्तों को बिस्तर में अपने साथ लेकर सोते हैं। मैं इसे साहिल पर हवाखोरी के लिए लेकर आया तो क्या बुरा किया? ये अंग्रेजों के शौक होते हैं। मेरे चिढ़ने पर वो बेसाख्ता हंस पड़ा। तुम किसी काले अंग्रेज से कम नजर नहीं आते। जाओ उसे देख लो, वो उधर पड़ा हुआ है। उसने चंद गज दूर एक तारीख टीले की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस वक्त मेरी पहुंच से वो दूर था। मैंने सरसरी अंदाज में सर घुमाया तो पहला कमांडो नजर आया। वो पूरी तरह हम दोनों की तरफ मुतवज्जा था। इस वक्त मैं जरा भी गड़बड़ करता तो वो लम्हा भर में अपने साथी की मदद के लिए आ सकता था। मेरे लिए इन मुसल्ला गीदड़ों का मुकाबला करना मुहाल था। मैं सर झटक कर इस मुख्तसर सी ढलान से उतरने लगा जो रतीले टीले पर खत्म हो रही थी। मैंने टीले पर चढ़कर दूसरी तरफ देखा तो चांद की फीकी रोशनी में मुझे कुत्ते का बेजान थड़ नजर आ गया। इस बेहिस्सो हरकत वजूद का सिरे से गायब था। इस वक्त तक मैं इन्हें फरेब देने में कामयाब रहा था और इनके दरमियान घुस आया था, लेकिन मुझे इन पर वार करने का कोई बेदाग मौका नहीं मिल सका था। मेरी सही सलामत वापसी के लिए इतना काफी होता कि मैं मुतवफ़्फ़ी कुत्ते की मलकियत के दावे से यकसर दस्तबरदार हो जाता, इसे पहचानने से इनकार कर देता और इन दोनों जोर आवर कमांडोज का शुक्रिया अदा करके वापस लौट जाता। मुझे यह अंदाजा भी था कि मुझे अपने साथियों से अलग हुए खासी देर हो चुकी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी तशवीश में इजाफा होना लाजमी था।
میں ان کی نگاہوں سے اوجھل تھا۔ وہ سب اپنی اعصابی کشیدگی کے نتیجے میں کسی بھی لمحے میرے لیے کوئی امدادی کارروائی عمل میں لا سکتے تھے۔